Good morning, students, and welcome you all for another fantastic lecture on management accounting, or FM, you can say. You can see on the screen that is ratio, and what we are going to discuss so much interesting today is nothing but the ratio analysis. But before seeing ratio and ratio analysis, let's discuss what is ratio. Students, ratio is nothing but a quotient. There is a numerator and denominator, we all know. And ratio, you can see on the screen, a ratio is a simple arithmetical relationship between two related variables, or ratio is basically nothing but relationship of one variable to another, which is expressed in the form of a quotient there. Now it may be defined as the indicated quotient of two mathematical expression, and a ratio is an expression of quantitative relationship. So do remember, students, ratio is a quantitative relationship. Quantitative means which can be measured in terms of numbers. That is how quantitative. To understand quantitative and qualitative, do remember, students, I always used to give an example that let's say that I have given two gulab jamuns to eat to all of you, isn't it? The gulab jamun is a favorite thing. So two gulab jamuns has been given to you and to every student. So there are 80 students in the class, and for all 80 students I have given two gulab jamuns each. And I have asked after eating gulab jamun how the gulab jamun were. So few of the people may be saying that, sir, it were fantastic. Few may be saying that, sir, I don't like gulab jamun. Few say that, sir, और थोड़े से है तो दे देना. Now these are the different answers there. So this is qualitative, my dear. Qualitative means it is based on opinion and it can change at any point of time. But when I'll ask to all of you that how many gulab jamuns I have provided you to eat, then the answer is uniform, and that is two gulab jamuns. So this is how quantitative, my dear. Quantitative means which is measured in terms of numbers, and precisely it is an objective thing that we cannot deviate from that. So ratio is nothing but a quantitative relationship between related variables or two numbers. That is only ratio, my dear. Now we are going to discuss ratio analysis, which is given there. Ratio analysis is the process of determining and presenting the relationship of items and group of items in the financial statements. Now, what is financial statements? We know that financial statements are nothing but FS. We usually write it down as profit and loss account or income statement, and another one is that is balance sheet. So these we are going to treat it as FS. One is profit and loss account and another one is balance sheet. So what is ratio analysis, my dear? It is the process of determining and presenting the data or relationship of items and group of items in between income statement, that is profit and loss account, where we are going to record all expenses and losses on debit side, all incomes and gains on credit side, and then we are going to find out the net profit and net loss as far as the profit and loss account is concerned. Whereas in a balance sheet, what is there is, students, nothing but various assets and liabilities as on a date. What the business owes and what the business owns is nothing but balance sheet, that is statement of various assets and liabilities as on a date. तो ये सब का हम relationship compare करेंगे ratio में. Rather, that is ratio analysis. So it is the process of determining and presenting the relationship of items and group of items in profit and loss account and in balance sheet. So we are going to compare either into items or into the group of items. Now what is items? Items, simple. We are going to compare the profit of the business with the turnover. That is net profit to the sales is the ratio, and that is called as, students, that is net profit ratio. Net profit ratio अगर हमें निकालना है तो सेल्स के कंपैरिजन में हम निकालेंगे, टर्नओवर के कंपैरिजन में हम निकालेंगे. तो रेशियो क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय sales or net sales whole multiplied by 100. This will give you the idea that how much is the percentage of net profit in comparison with your turnover or sales. So that is one thing, my dear. So this is comparison of items in between the profit and loss account. Net profit कहाँ पे आता है बेटा? Profit and loss account का ये बॉटम लाइन है. हम बोलते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बॉटम लाइन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टॉप लाइन क्या है. ये प्लेसमेंट के इंटरव्यू में बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं बेटा. डू रिमेंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स. डू रिमेंबर दिस वन, एवरीबडी. सो व्हाट इज द बॉटम लाइन देयर? लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर ऑल ऑफ यू. बॉटम लाइन ऑफ P&L इज पैट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसको हम क्या बुलाएंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स और
नेट प्रॉफिट, दैट इज नथिंग बट द बॉटम लाइन ऑफ द बिजनेस। इसको हम बॉटम लाइन क्यों बुलाते हैं बेटा? क्योंकि इसी से बिजनेस का परफॉर्मेंस हम डिटरमाइन करते हैं। और बिजनेस का टॉप लाइन क्या है? तो बिजनेस का टॉप लाइन होता है माय डियर, जिससे ये सारी चीजें आगे चलती है। तो ये बॉटम लाइन है। और टॉप लाइन क्या है? टॉप लाइन बिजनेस का होता है जिसपे पूरा सब कुछ निर्भर होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स और टर्नओवर। तो ये टॉप लाइन है। और बॉटम लाइन हम प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट along with sales comparison, it is nothing but the comparison of items in the profit and loss account or in the income statement. उसी तरह से if we are going to compare current assets with current liabilities, then it is group of items which are compared with each other to find out the meaningful relationship, and that is how again it is nothing but a ratio analysis. So it is the process of determining and presenting the data or relationship of items or group of items either in the profit and loss account or in the balance sheet. So that is how ratio analysis is defined. Another definition of ratio analysis which you can see on the screen, that ratio can assist management in its basic functions of forecasting, planning, coordination, control and communication. So ratio analysis, students, it is a fundamental tool or basic tool of financial analysis. Ratio analysis क्या है बेटा? Fundamental tool है for financial analysis, and how it is going to help, that it is going to determine the past performance, that how you performed as compared to your own performance, as compared to the industry average or as compared to your competitors. So there is so much of scope of ratio analysis. याद रखिए बेटा, ratio analysis is the basic tool of financial analysis. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एक बात है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हैं सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन लेफ्ट साइड, सारे इनकम्स एंड गेन्स ऑन right side, and then we are going to calculate whether there is net profit or net loss. Whereas balance sheet, it is always going to match in terms of various assets and liabilities. अब ये सिर्फ आपने प्रिपेयर किया है, that is P&L and balance sheet. अब ये P&L and balance sheet से आप प्रेजेंट करेंगे आइटम्स का रिलेशनशिप या ग्रुप ऑफ आइटम्स का रिलेशनशिप विद ईच अदर टू फाइंड आउट दैट हाउ द बिजनेस इज फेयरिंग, हाउ द बिजनेस इज गोइंग ऑन। पास में क्या था, आज क्या है, कल क्या हो सकता है, और इसका कंपैरिजन आपका खुद के साथ, इसका कंपैरिजन कंपटीटर के साथ, और इसका कंपैरिजन इंडस्ट्री एवरेज के साथ। इंडस्ट्री एवरेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर व्हीलर, यू आर ओनिंग अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर व्हीलर, तो आपका कंपैरिजन होगा अभी ऑब्वियसली क्या प्लेयर्स है मार्केट में, हुंडई है, मारुति है, होंडा है, all these are the players, along with that Audi is there, BMW is there, what not, tremendous segment there। तो इनके साथ इनका सबका एवरेज निकाला जाएगा और उसको इंडस्ट्री एवरेज बोला जाता है किसी भी रेशियो के लिए। वो इंडस्ट्री एवरेज के साथ आपका रेशियो कंपेयर किया जाएगा, एंड देन यू कैन से दैट यू आर बेटर देन द इंडस्ट्री और यू आर नॉट बेटर देन द इंडस्ट्री। दैट इज हाउ इंडस्ट्री एवरेज माय डियर। कॉम्पिटिटर का तो आपको पता है, जो क्लोज कॉम्पिटिटर उसके साथ आप कॉम्पिटिशन करेंगे और बताएंगे कि कैसे चल रहा है। According to Batty J, management accounting, ratio can assist management in the functions of forecasting, planning, coordination, control, and communication. Obviously, ratio is going to communicate the results of the business there. Now, further it is given that it is helpful to know ratio analysis बनाते क्यों है बेटा। हमें चार बेसिक चीजें समझनी है यहाँ पे। सबसे पहला liquidity. Now, what is liquidity? Liquidity is the ability of the business to pay short-term liabilities out of its short-term assets. बड़ा ध्यान से सुनिए बेटा, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी इज एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आउट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म असेट्स। दैट इज लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस इज नथिंग बट टू पे करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ द करंट असेट्स ऑफ द बिजनेस। तो लिक्विडिटी सबसे पहले जाननी है। तो पहला टाइप ऑफ रेशियो लिक्विडिटी रेशियो बेटा, बड़ा सिंपल है, देखेंगे अपन। सेकेंड इज सॉल्वेंसी और इट इज कॉल्ड एज एट द सेम टाइम लिवरेज रेशियो, इसको हम बुलाते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो बुलाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बुलाते हैं। उसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, एंड फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे चार तरह के रेशियो बताए हैं। नंबर वन इज लिक्विडिटी, सेकंड इज सॉल्वेंसी, थर्ड इज कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के भी दो टाइप्स है बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू हाउ मच मनी यू हैव पुट इनटू द बिजनेस, कितना पैसा आपने लगाया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल्स आपका है और कितना प्रॉफिट हुआ। ये दो अलग क्राइटेरिया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी दो कॉन्टेक्स्ट में आप निकाल सकते हो बेटा, दैट इज हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड एंड हाउ मच इज द प्रॉफिट, whereas
how much sales or turnover is there and how much is the profit. So these are the two bases, my dear. Let's go ahead. So it is helpful to know about liquidity, solvency. ये liquidity बेटा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है और सॉल्वेंसी जो है ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है। दोनों का मतलब क्या है? टू सी द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो इसको लिक्विडिटी बुलाया जाता है और ये अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो इसको सॉल्वेंसी बुलाया जाता है। Capital structure is going to show you that how the capital structure of the business is looking like. Is it costly or is it risky? आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में ओन कैपिटल ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्टली ज्यादा रहेगा, और आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर बॉन्ड्स है, लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा है, पब्लिक डिपॉजिट्स है as compared to owned capital, then your capital structure is risky, and that we are going to find out with the capital structure ratios, my dear. Along with that, the last is profitability, which I already told you. It is going to be compared in relation to turnover, number one, in relation to capital employed, number two. That is how we are going to see as far as these ratios are concerned. अब रेशियो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, फॉर्म क्या है रेशियो के? You can see on the screen there are three types of ratios, expression of ratios. Number one, pure ratio. सबसे पहले प्योर और सिंपल रेशियो आप देख सकते हैं क्या बेटा? इट इज एक्सप्रेस्ड एज सिंपल डिवीजन ऑफ वन फिगर टू द अनदर वन और वन नंबर टू द अनदर वन. फॉर एग्जांपल, करंट असेट्स ऑफ अ बिजनेस 2 लाख, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस 1 लाख. तो रेशियो क्या बनेगा? बड़ा आसान है बेटा रेशियो. करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटीज, जब भी 2 आता है 2 के पहला न्यूमरेटर, 2 के बाद का डिनोमिनेटर. तो करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये देखिए इस तरह से ये रहेगा. सो CA अपॉन CL is the ratio, और बेटा इसको बोलते हैं which ratio it is? This is current ratio. आगे देखने ही वाले इसके बारे में. तो ये करंट रेशियो बेटा, तो यहाँ पे CA दिया है 2 लाख, CL दिया है 1 लाख. 2 लाख अपॉन 1 लाख, ऊपर के 5 जीरो काट दो, नीचे के 5 जीरो काट दो, बचा क्या? It is 2:1. So current ratio is 2:1. That is how it is pure ratio और simple ratio इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. उसके आप देख सकते हैं बात बेटा, रेट ऑफ सो मेनी टाइम्स, कितना टाइम्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दिस टाइप इट इज कैलकुलेटेड एज टाइम्स ऑफ अ फिगर इन कंपैरिजन टू अनदर फिगर. फॉर एग्जांपल, एक फर्म का क्रेडिट सेल्स उन्होंने दिया है 2 लाख का या 20 लाख का. यस, ये 2 लाख दिया है और उसका डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज गिवन ₹40,000 और रेशियो उन्होंने निकाला, दैट इज क्रेडिट सेल्स टू डेटर्स, और इसको बोला जाता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो. देखिए, क्रेडिट सेल्स है 2 लाख डिवाइडेड बाय डेटर्स है 40,000 और आपका रेशियो निकला 5 टाइम्स. तो ये दूसरा टाइप है बेटा, और इसको हम क्या बुलाते हैं? रेशियो को DTR. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स. सो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला एज फार एज डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज कंसर्न. अब डेटर्स टर्नओवर क्या है? डेटर्स टर्नओवर बताता है कि आप जितना क्रेडिट बेचते हैं उसके कंपैरिजन में डेटर्स कितने हैं या उसका टर्नओवर क्या है. So that is how credit sales for the year is 2 lakh, whereas 40,000 is the debtors. So इतना आना बाकी है क्योंकि इतना पैसा अभी तक फंसा हुआ है कस्टमर के पास. So 2 लाख अपॉन 40,000. So that you can see 5 times. It shows that credit sales are 5 times in comparison to the debtors, and this is called as DTR, debtors turnover ratio, my dear. So दो तरह के रेशियो हमने पहले देखे, एक प्योर या सिंपल, जिसमें हम निकालेंगे 2:1, 1:2, 4:3, 5:1, दैट वे अराउंड. तो ये प्योर रेशियो है, सिंपल रेशियो. दूसरा है सो मेनी टाइम्स, टाइम्स में निकालेंगे हम 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जिसमें हमने एग्जांपल देखा डेटर्स टर्नओवर रेशियो. सारे टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आते हैं बेटा, बड़ा सिंपल बात है. सारे टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आते हैं. सारे लिक्विडिटी रेशियो किस में आते हैं? सिंपल या प्योर रेशियो में आते हैं. अब बचा क्या? अब बचा परसेंटेज. परसेंटेज के लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी आना चाहिए, जो आप देख सकते हैं. प्योर रेशियो में मैंने क्या बोला बेटा? फिर से याद रखिए, लिक्विडिटी रेशियोज आर प्योर रेशियोज, इवन सॉल्वेंसी रेशियोज आर प्योर, इवन लिक्विडिटी रेशियोज आर प्योर रेशियोज. लिक्विडिटी के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी प्योर आते हैं बेटा. और फिर टाइम्स में कहां पे आता है? सो मेनी टाइम्स. कौन से रेशियो आएंगे? जिसमें भी वर्ड टर्नओवर दिखा रेशियो में, वो टाइम्स में आएगा बेटा. अब बचा परसेंटेज. परसेंटेज को तो हमको सबको पता है, इनटू 100 किया कि परसेंटेज है. फिर इन रिलेशन टू सेल्स रहेगा तो भी परसेंटेज है. इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा, फंड्स डिप्लॉयड रहेगा, तो भी परसेंटेज में आएगा इनटू 100 करके. दैट इज हाउ इट इज गोइंग ऑन. लेट्स मूव अहेड माय डियर. तो 3 तरह के रेशियो है, सिंपल और प्योर फॉर्म, सेकेंड इज टाइम्स में, और तीसरा है आपका परसेंटेज फॉर्म में. तो ये रेशियो हमें देखने हैं. अब देखते हैं
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो। एडवांटेज देखेंगे लेकिन रेशियो डिस्कस करने के बाद, क्योंकि रेशियो जैसे ही डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ रेशियो का इस तरह से यूज होता है और ये इस तरह से काम में आता है। तो एडवांटेज लिमिटेशन अभी के लिए स्किप करेंगे, जैसे ही हम रेशियो डिस्कस करते बेटा फिर हम आएंगे एडवांटेज पे। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्लासिफिकेशन क्या दिया है, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो बेटा, देखिए बड़ा आसान है। रेशियोज में भी क्लासिफाइड इनटू द 4 कैटेगरीज, और उसमें सबसे पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियो विच आर कंप्लीटली रिलेवेंट टू करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो किससे रिलेट करते हैं बेटा, टू करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। चलिए देखिए पहला रेशियो क्या दिया है, इट इज करंट रेशियो, सेकंड इज क्विक रेशियो और विच इज आल्सो कॉल्ड एज एसिड टेस्ट रेशियो। आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये कैसा नाम है। एसिड टेस्ट इज नथिंग बट इट इज एन इमीडिएट टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, I'll explain it. And third is super quick ratio or absolute quick ratio. ये तीसरा है बेटा. So it is current ratio, first one. Second is quick ratio or acid test ratio. And third is super quick ratio or absolute liquid ratio. अब यहाँ पे कैटेगरीज दी है बेटा. दूसरा है लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, जैसे मैंने आपको बोला था, जिसमें हम ओन्ड और बोरोड कैपिटल का कंपैरिजन करेंगे। उसमें क्या क्या रेशियो है उसका लिस्ट दिया है। All we are going to discuss one by one. We are going to enjoy it like anything. Don't worry at all. This is an enjoyable journey. और उसके बाद हम देखेंगे तीसरा रेशियो एंड दैट इज एक्टिविटी टर्नओवर और इफिशिएंसी रेशियो। ये सिनोनिमस टर्मिनोलॉजी फाइनेंस अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा मैटर करती है बेटा। सो एक्टिविटी टर्नओवर और इफिशिएंसी रेशियो, वी आर गोइंग टू कंपेयर सेल्स एंड टर्नओवर विथ वेरियस फिगर्स। तो ये एक्टिविटी जितने भी रेशियो है, टर्नओवर या इफिशिएंसी जितने भी रेशियो है, हम ये सारे सेल्स के साथ या टर्नओवर के साथ देखेंगे बेटा। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे रेशियोज है, जैसे कि स्टॉक टर्नओवर है, डेटर्स टर्नओवर है, क्रेडिटर्स टर्नओवर है, एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो है, एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो है, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो है, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, और आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। यहाँ पे दो तरह का बाइफरकेशन आप सीधा देख सकते हैं। पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स और टर्नओवर, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो है, और दूसरा आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर ऑफ टू टाइप्स देयर, और इसमें भी दो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। तो इस तरह के रेशियो हमें देखना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रेशियो बेटा। रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, ईपीएस, डीपीएस, अर्निंग एंड डिविडेंड यील्ड, प्राइस अर्निंग रेशियो, सब कुछ हम देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम पहले रेशियो से, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। देखिए बेटा लिक्विडिटी के बारे में क्या दिया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, लिक्विडिटी इज नथिंग बट सिंपली एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आउट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म assets. Or in simple words, liquidity of the business is nothing but ability of the business to pay current liabilities out of its existing current assets. अब पहला सवाल दिमाग में जरूर आएगा, what does mean by current assets? That already we have seen. Current assets are nothing but the assets which are easily converted into cash within one accounting year. And what about current liabilities? पहले current assets का देखते हैं। Current assets are the assets which are easily converted into cash within one accounting year. Examples are cash in hand, cash at bank, debtors, bills receivable, all three types of stock and inventory, that is stock of raw material, stock of work in progress and stock of finished goods. Along with that, prepaid expenses, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सब यहाँ पे दिया है बेटा। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि लिक्विडिटी के बारे में उन्होंने क्या बोला है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म और बिजनेस टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ इट करंट असेट्स। करंट लायबिलिटीज पे करना है, करंट लायबिलिटीज असेट्स से। द लिक्विडिटी रेशियो देयरफॉर आर आल्सो कॉल्ड एज, देखिए बेटा मैंने बोला था, इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था लिक्विडिटी का मतलब क्या है, इट इज सिंपली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ दीज रेशियोज आर यूज्ड टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दे इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट असेट्स। ये देखिए, दे इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी, जैसे यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि ये क्यों निकालते हैं। दे इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी टू meet its current obligation out of current resources. current obligation का मतलब है बेटा current liability, current resources का मतलब है current assets. So बस हमें यहाँ पे रिलेशनशिप देखनी है current assets और current liabilities की। और देखिए आगे लिक्विडिटी का डेफिनेशन उन्होंने दिया है, liquidity is ability of the firm to meet its current obligation as they fall due. liquidity क्या है?
ability of the business to pay short term liability out of short term assets. Very simple, it is given. अब देखते हैं ये रेशियो कौन से है. तीन रेशियो है. नंबर वन करंट रेशियो, नंबर टू क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो. इसी को लिक्विड रेशियो बोलते हैं बेटा. तीन रेशियो है यहाँ पे और तीसरा है सुपर क्विक या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो. सो देयर आर ऑल थ्री रेशियोज. एंड नाउ करंट रेशियो आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन करंट रेशियो देखने के पहले यहाँ पे फॉर्मूला ब्लैंक दिया है मैंने जानबूझ के, ताकि मैं फॉर्मूला लिख पाऊं और आप भी फॉर्मूला मेरे साथ लिखे और आपको समझ में आ जाए. फॉर्मूले पहले से अगर दे दिए होते तो फिर आगे उतना मजा नहीं आता, इसलिए मैंने जानबूझ के फॉर्मूला का लाइन वहां पे ब्लैंक छोड़ा है. सो करंट रेशियो का फॉर्मूला हम लिखेंगे, बट उसके पहले समझिए कि करंट असेट्स क्या है. यहाँ पे दिया है करंट असेट्स इंक्लूड दोज असेट्स व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर. सारे एग्जांपल्स आपको दिए बेटा, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर नोट्स बनाए मैंने आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए. करंट असेट्स में क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सॉरी डेटर्स, दैट इज ऑब्वियसली माइनस आरडीडी या प्रोविजन करके, प्लस स्टॉक ऑफ ऑल थ्री, दैट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये कंपोजिशन है आपके करंट असेट्स का. और डेफिनेशन क्या है? assets which are easily converted into cash within one accounting year. इसको हम करंट असेट बुलाते हैं, इसी को हम शॉर्ट टर्म असेट बुलाते हैं बेटा. उसके बाद देखिए करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है. करंट लायबिलिटीज इंक्लूड दोज लायबिलिटीज व्हिच नीड टू बी पेड विद इन वन अकाउंटिंग ईयर विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग करंट असेट. करंट असेट आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे क्या क्या है, और नीचे करंट लायबिलिटी भी आप देख सकते हैं बेटा. करंट लायबिलिटीज आर आल्सो गिवन हियर. Current liabilities include bank overdraft, it is a short-term loan, plus bills payable, plus creditors, plus provision for tax, plus proposed dividend, unclaimed dividend, outstanding expenses, and short-term loans, loans repayable within a year. तो ये current liability का combination है. तो current asset और current liability, I hope you got it, the definition along with the composition. अब मैं यहाँ पे आपके लिए formula लिखता हूँ. देखिए formula तो already लिखा है. Current ratio is equal to current assets upon current liabilities. तो बस हमें current assets का कंपोजिशन को ऐड करना है, करंट लायबिलिटी का कंपोजिशन को ऐड करना है और दोनों का रेशियो निकालना है. आज आई टोल्ड यू इट इज अ प्योर रेशियो और सिंपल रेशियो एक्सप्रेस्ड इनटू 2:1, 3:1, 4:1, 4:3, 5:4, दैट वे अराउंड. इस तरह से हमें उसको रेशियो करना, एक्सप्रेस करना है. ऑब्वियसली इट इज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. बड़ा सिंपल बात है. और इसका सिग्निफिकेंस क्या है और कितना रेशियो होना चाहिए, दैट इज गिवन हियर. According to accounting principles, a current ratio of 2:1 is supposed to be an ideal ratio. 2:1 अच्छा माना जाता है बेटा, बट याद रखिए even the ratio of 1.33:1 is considered as satisfactory here. कुछ रूल्स इसके बदलते रहते हैं. So 1.33:1 भी रहा तो भी इसको satisfactory माना जाता है. Generally banks, financial institutions which give loan, even they say that 1.33:1 रहा तो भी बेटर है. 2:1 तो बहुत बेटर है. आप बोलेंगे फिर 3:1, 4:1. हाँ, इसके बारे में जरा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया. इट मींस दैट करंट असेट्स ऑफ अ बिजनेस शुड एटलीस्ट बी ट्वाइस ऑफ इट्स करंट लायबिलिटी. 2:1 का रेशियो मतलब क्या बेटा, कि करंट असेट 2 टाइम्स है इसके करंट लायबिलिटी के. जैसे कि एग्जांपल में दिया था, करंट असेट्स 2 लाख है, करंट लायबिलिटीज 1 लाख है. सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1, रेशियो इज 2:1, एंड इट शोज दैट it means the current assets of a business should be at least twice of the current liability. यानी करंट अगर लायबिलिटीज आपकी 2 लाख है तो करंट असेट कितने होने चाहिए बेटा? 4 लाख. करंट लायबिलिटी अगर 1 लाख है तो करंट असेट्स कितने होने चाहिए? 2 लाख. क्योंकि हमें रेशियो कितना चाहिए आइडियली? 2:1 या उससे ज्यादा, to be called it as a satisfactory ratio. The higher ratio indicates the better liquidity position of the business. लेकिन कितना हायर? यानी 2:1 या उससे ज्यादा रहेगा तो बेटर रहेगा, ऐसा बोलना है. बट जरा होल्ड कीजिए, रुक जाइए. द फर्म विल बी able to pay its current liabilities more easily if the ratio is 2:1 or more than that. If the ratio is less than 2:1, it indicates lack of liquidity and shortage of working capital. वैसे बेसिकली वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है बेटा? सिंपल वर्ड्स में वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट CA माइनस CL. इसी को हम क्या बुलाते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल. याद रखिए बेटा, working capital is nothing but difference between current assets and current liabilities. CA minus CL is nothing but net working capital. And अगर रेशियो 2:1 से कम है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता. The biggest drawback of the current ratio is that it is susceptible to window dressing. These ratios can be improved by equal increase or decrease in both current assets and current liabilities. But we have to calculate it, and it is a parameter for
indication of short-term solvency of a business or liquidity of the business. अगला रेशियो देखते हैं, तो रेशियो कितना होना चाहिए बेटा? फॉर्मूला क्या है? रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स में क्या क्या आता है? लिस्ट आपके सामने है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, debtors, bills receivable, stock of all three types, that is raw material, finished goods, work in progress, along with that prepaid expenses, short term or marketable security, and all these are nothing but the composition of current assets. Current liabilities में bills payable, creditors, bank overdraft, outstanding expenses, provision for tax, proposed dividend, unclaimed dividend, and short term loan. ये आपके क्या है? short term liabilities है, और ये current liabilities है। और रेशियो कितना आना चाहिए? करंट रेशियो बेटा 2:1, or even at times 1.33:1 is considered as satisfactory। तो बड़ा आसान रेशियो बेटा, तीन ही रेशियो है, खत्म करते हैं इसको एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट रेशियो। तो याद क्या रखना है? पहली चीज याद रखना है, कैटेगरी क्या है? लिक्विडिटी। क्यों निकालते हैं लिक्विडिटी? टू चेक आउट दैट वेदर बिजनेस इज एबल टू पे ऑल इट्स करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ इट्स करंट assets. This is called as short-term solvency as well. Ratio number 1 is current ratio, which is the combination of current assets divided by current liabilities. Ratio कितना होना चाहिए आइडियल? 2:1 or 1.33:1 is also considered as satisfactory. इससे ज्यादा रहा तो अच्छी बात है, कम रहा तो अच्छी बात नहीं है, because it shows that you are not able to pay your current liability out of your current assets. अब बहुत ज्यादा रहा तो भी अच्छा नहीं होता। जैसे कि आप बोलेंगे 4:1 हमने मेंटेन किया है, दिस इज नॉट गुड। आप बोलेंगे क्यों सर, 2:1 से तो ज्यादा है। रीजन इज दैट यू आर अननेसेसरली इन्वेस्टिंग इनटू करंट असेट्स। वो भी 4 रुपया आप बना के रख रहे पे करने के लिए 1 रुपया, क्योंकि करंट लायबिलिटीज तो 1 है और करंट असेट्स 4 है। अब 1 रुपया पे करने के लिए 4 रुपए प्रोवाइड करना, ये अच्छे बिजनेस की निशानी नहीं है। यानी आप एक्सेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हो करंट असेट्स में, विच इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस एट ऑल। तो यहाँ पे 2:1, 2.5:1 is fair enough. इससे ज्यादा होगा, it indicates that you are unnecessarily blocking your money into current assets. So high current ratio shows that excessive investment into current assets, my dear, which is not good. So either 2:1 is okay, 2.5:1 is okay, even at times 1.33:1 is okay. So that is what the significance of this ratio. ये बहुत जरूरी है बेटा, हमें पता होना चाहिए कि हम रेशियो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वरना पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। फाइनेंस अकाउंटिंग दैट वे अराउंड इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट गिव आंसर्स टू ईच एंड एवरीथिंग। अब देखिए फर्क क्या है। आप बोलेंगे सर लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो क्या बताता है? ये देखिए क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। अब इसको एसिड टेस्ट क्यों बुलाते हैं, ये भी यहाँ पे दिया है। लिक्विड असेट्स और क्विक असेट्स, इसका फॉर्मूला है बेटा डिवाइडेड बाय लिक्विड और क्विक लायबिलिटीज। अब फर्क क्या है इसमें, देख सकते हैं आप। लिक्विड असेट्स का मतलब विच विल यील्ड कैश वेरी शॉर्टली। अब कौन सा करंट असेट है जो इमीडिएटली कैश देगा और कौन सा है जो टाइम लेगा? जैसे कि कैश इन हैंड इमीडिएटली देगा, कैश एट बैंक इमीडिएटली देगा, डेटर्स ये भी पैसे आ ही जाएंगे क्योंकि आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने से ज्यादा क्रेडिट पीरियड देने से तो नहीं रहे, am I right? सो ये सारे करंट असेट्स ही है और ये इजीली लिक्विड भी है, क्विकली लिक्विड है। तो क्या नहीं है इजीली लिक्विड, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में स्टॉक और इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये लीस्ट लिक्विड असेट्स है बेटा। लीस्ट लिक्विड का मतलब क्या है, इनको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। सो लिक्विड असेट्स मींस दोज असेट्स और क्विक असेट्स मींस दोज असेट्स व्हिच विल यील्ड कैश वेरी शॉर्टली। यानी लेने तो करंट असेट्स है हमें, लेकिन क्या छोड़ना है उसमें से, हमें छोड़ना है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ ऑल 3 टाइप्स एंड इफ प्रीपेड एक्सपेंसेस आर देयर उसको भी हमें छोड़ना है। मतलब फॉर्मूला सिंपल बनेगा, क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स का टोटल ऑफ करंट असेट्स माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों है तो उसको हमें नहीं लेना है। टोटल ऑफ करंट असेट्स में तो हमने उसको ले लिया, इसलिए उसको माइनस करना है। और देखिए लिक्विड या क्विक लायबिलिटी में क्या करना है, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को लिक्विड लायबिलिटीज में नहीं लिया जाता। इसका रीजन ये है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन ऑकेजनल थिंग, बार बार तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिया जाता और ये शॉर्ट टर्म लोन है, ऑकेजनली इट इज टेकन एंड इट हैज टू बी रीपेड बैक इमीडिएटली। दैट इज हाउ इट इज नॉट कंसिडर्ड एज यूजुअली लिक्विड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो भी कभी कभार मिलेगा आपको कि आपको इंटरेस्ट एडवांस में दे दिया किसी ने, रेंट किसी ने आपको 6 महीने का एडवांस में दे दिया, इट इज you can say that somehow occasional thing and will not be there.
इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस माइनस किए जाते हैं। स्टॉक को कन्वर्ट होने में कैश को टाइम लगता है, क्योंकि पहले रॉ मटेरियल है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, फिर फिनिश गुड्स आएगा। जैसे कि आप बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उस तरह का स्टील बनाने में आपको टाइम लगता है। पहले वो रॉ मटेरियल है, दिस रॉ मटेरियल to become WIP, it takes almost 6 months, and from WIP to finished goods, it takes another 4 months. तो ये साइकिल लंबी हो जाती है। ये करंट असेट जरूर है, लेकिन क्विक नहीं है, मतलब फटाक से कैश में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, ये स्टेज से जाना ही पड़ेगा। पहले रॉ मटेरियल, फिर WIP, फिर फिनिश गुड्स, एंड दैट टेक्स टाइम। दैट इज हाउ दीज आर कंसिडर्ड एज लीस्ट लिक्विड असेट। क्या? स्टॉक और इन्वेंट्री। बेटा, स्टॉक और इन्वेंट्री को लीस्ट लिक्विड माना जाता है। उसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी लीस्ट लिक्विड। आपने किसी को एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए, अब वो वापस तो लेंगे नहीं आप, मतलब that is how these are not considered as liquid because you cannot convert it into cash. इसलिए जब भी लिक्विड असेट आप निकालते हैं तो याद रखिए टोटल ऑफ करंट असेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड लायबिलिटीज के लिए टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये करंट रेशियो आपको एक साल की लिक्विडिटी बताता है। बेटा, करंट रेशियो एक साल की बताता है। क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो आपको इमीडिएट एक महीने की लिक्विडिटी बताता है कि अगर एक महीने में आपको पे करना है जो कुछ आपकी क्विक लायबिलिटीज है, जो कुछ आपकी लिक्विड लायबिलिटीज है, तो उसके लिए आपके पास पैसा लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स में कितना है। तो दैट इज व्हाट इट इज गिवन। अब ऊपर जाते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। अब ये देखिए फॉर्मूला क्या दिया है, लिक्विड असेट्स और क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड और क्विक लायबिलिटीज। यानी सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल ऑफ करंट असेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसका आइडियल क्या है, ऊपर तो 2:1 या 1.33:1 था, नीचे क्या है, नीचे आइडियल है बेटा 1:1। यानी अगर करंट असेट्स यानी लिक्विड असेट्स और क्विक असेट्स 1 लाख है, लिक्विड लायबिलिटीज भी 1 लाख है, तो रेशियो आएगा 1:1 एंड इट इज कंसिडर्ड एज satisfactory। देख सकते हैं, an ideal quick ratio is said to be 1:1. If it is more, it is considered as good or safe. This ratio is better test of short-term solvency of the business or short-term financial position of the company. जैसे मैंने आपको डिफरेंस बोला बेटा, करंट रेशियो एक साल का लिक्विडिटी दिखता है, क्विक रेशियो विद इन अ मंथ लिक्विडिटी दिखता है। आप बोलेंगे सर तीसरा भी दिख रहा है, इसका क्या है? ये भी बताता हूं बेटा। ये तो आज की डेट में ही बताता है। आज अगर आपको लायबिलिटीज पे करनी है तो आज करंट असेट्स आपके पास, करंट असेट्स नहीं, आपके पास हाईली लिक्विड असेट्स कितने हैं ये बताता है। इसलिए ये थर्ड जो रेशियो है बेटा, ये क्या है, सुपर क्विक और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला क्या है, बड़ा आसान फॉर्मूला बेटा। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो मतलब अब भी अगर निकालने जाता हूं कि मैं कितना पे कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ करंट असेट्स, तो मेरे पास कितना पैसा है, तो उसमें क्या क्या है, कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटी। जैसे कि आपने शेयर खरीदे शॉर्ट टर्म के लिए, आज खरीद सकते हैं, आज ही बेच सकते हैं, आज खरीद सकते हैं, 1 महीने बाद बेच सकते हैं, दैट इज इट इज हाईली लिक्विड। तो इनका बस टोटल किया जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ऑल करंट लायबिलिटीज। यानी आपके पास इमीडिएट पैसा कितना है। आज की डेट में अगर मुझे लायबिलिटी पे करनी है तो कौन सा पैसा अवेलेबल है बेटा, कैश इन हैंड अवेलेबल है, कैश एट बैंक अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपके पास है बेच सकते हैं। आप बोलेंगे सर बाकी के डेटर कन्वर्ट नहीं होंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि आपने उनको 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो उसका तो कन्वर्जन का इंतजार करना पड़ेगा। स्टॉक अभी हमने डिस्कस किया, इट इज लीस्ट लिक्विड असेट, इट इज नॉट हाईली लिक्विड असेट, इट इज लीस्ट लिक्विड असेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी वैसे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इमीडिएट कन्वर्ट जो होता है कैश में वही लिया जाता है, एंड दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस along with that short term investments और marketable security। इसका कंपैरिजन हम करेंगे टोटल करंट लायबिलिटी के साथ और ये रेशियो निकालेंगे, और इसका आइडिया देखिए क्या है, 0.25:1 और 1:4। यानी फॉर्मूला क्या बना देख सकते हैं आप, द फॉर्मूला फॉर सुपर क्विक रेशियो इज दैट इज कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यानी अगर आपकी करंट लायबिलिटी ये आइडियल अगर निकालना है तो आपका अगर करंट असेट 1 लाख है और आपका सुपर क्विक असेट्स या एब्सोल्यूट लिक्विड जो असेट्स है वो 1 लाख के है और आपकी लायबिलिटी 4 लाख के है, तो ये रेशियो ऑटोमेटिकली आएगा 1:4 या फिर ये आएगा बेटा 0.25:1। दिस इज कंसिडर्ड एज आइडियल। यानी इसका प्रोपोर्शन आप बोल सकते हैं असेट 1 टाइम और लायबिलिटी उसके 4 टाइम हो सकते हैं, बट कौन से रेशियो में, सुपर क्विक और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो में। रिपीट करता हूं आपके लिए बेटा,
सुपर क्विक या एब्सोल्यूट क्विक रेशियो इमीडिएट लिक्विडिटी देखता है। इमीडिएट मतलब अभी, राइट नाउ, अगर आपको करंट लायबिलिटी पे करने हैं तो कितना कैश है। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, एक महीने के अंदर की लिक्विडिटी देखता है। और फॉर्मूला इज क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज और लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज, whereas liquid assets is equal to all current assets minus stock and prepaid expenses, whereas liquid liabilities or quick liabilities is equal to total of current liabilities minus bank overdraft and income received in advance. Ideally is 1:1 as far as liquid, quick or acid test ratio is concerned. And the first one which we discussed is current ratio, which sees the liquidity of 1 year within a year. Within a year अपन देखते हैं कि current assets का current liabilities के साथ क्या composition है. So it formula is simply CA upon CL, and ideal or standard is 2:1, or at times 1.33:1 is considered good. करंट असेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या है, ये सब हमने देखा। आई होप यू विल एंजॉय ऑल दीज फॉर्मूलेज, दैट इज करंट रेशियो CA upon CL, liquid ratio, quick ratio, acid test ratio. Formula is liquid assets or quick assets upon liquid liability upon or quick liabilities. And what is liquid assets or liquid liabilities is nothing but total of current assets minus stock and prepaid expenses. Liquid liabilities is total of current liabilities minus bank overdraft and income is received in advance. Ideal है 1:1। और आखिरी में हमने देखा बेटा, आज की डेट में अगर इमीडिएट पे करना है पैसा करंट लायबिलिटी का, तो आपके पास लिक्विड, हाईली लिक्विड कैश कितना है, इसको सुपर क्विक रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला है कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और इसका स्टैंडर्ड बेटा 0.25:1 और 1:4। तो ये तीनों रेशियो हमने देखे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड एब्सोल्यूट क्विक रेशियो और super quick ratio. I hope you'll enjoy this lecture and we'll continue for the next category. Till then, thank you and have a wonderful day ahead. God bless you. Bye-bye.